اس یسوع میں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. I request Brother Joe, could you come up here and read for us Luke chapter 7? Yes, and verse 11 to 17. لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے اور اس کا 7 باب ہے. ہم 11 سے 17 تک ہم پڑھتے ہیں. Luke chapter 7, verse 11 to 17. This is what it reads. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has visited his people." And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding region. This is the reading of the word of God. Thank you. Thank you, Pastor Joe. Hallelujah. لکھا ہے لوکا کی انجیل میں 11 آیت میں کہ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا. اب یہ جو تھوڑا عرصہ ہے، ابھی پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معجزہ ہوا ہے. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کفرنہوم میں ایک واقعہ ہوتا ہے. ایک صوبے دار تھا، اس کے نوکر کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شفا بخشتے ہیں. اور یہاں پہ اس کا جو ایمان ہے وہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر حقیقت میں کوئی خداوند یسوع مسیح کی جو اتھارٹی ہے اس کو جانتا ہے تو یہ شخص ہے. یہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے جو نوکر عزیز ہے اس کے لیے یہ آتا ہے. اس کے الفاظ ذرا سنیے، یہاں پہ لکھے ہیں ورس 8، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا. لوکا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر تھا، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ بھی میڈیکلی لحاظ سے کہ جو شفا پاتا ہے وہ بالکل جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے. جس طرح ایک پیشنٹ جو ہے وہ جب ہیل ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اسی طرح کا لوکا جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. پھر ہم 11 جو ورس ہے وہاں پہ آتے ہیں. لکھا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے. جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے. وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی. یہ جو معجزہ ہے کس کس نے یہ پہلے سنا ہے؟ سب نے یہ سنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خاص جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے پرسنز کون سے ہیں، جیزس دا لارڈ central figure in this passage, demonstrating his divine compassion and authority. اس کے بعد ایک اور پرسن ہے widow, a widow who had lost her only son, representing
deep personal loss. प्लेस का नाम जब हम पढ़ते हैं तो सिटी का नाम नाइन है. A small town in Galilee where his event take place, highlighting Jesus' ministry in various regions. उसके बाद एक और है, the crowd, a group of people accompanying the widow. उसके बाद हम देखते हैं deceased son, the young man whose death prompted the widow's grief and Jesus' compassionate respond. इस पॉइंट जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि आज नाइन शहर में क्या होता है. ये कोई एक्सीडेंट नहीं था. इंटेंशनली खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 25 मील का सफर तय करके तो वहां पे जाते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से मिरेकल जो है वो हमें पढ़ने को मिलते हैं, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी, जहां पे हम देखते हैं कि मुर्दों को जिंदा किया गया था. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 8 आयत से 24 आयत तक जब पढ़ते हैं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 8 to 24, वहां पे भी हम देखते हैं कि एलिया जो है वो भी सातपत की जो बेवा थी उसके बेटे को जो मर गया था खुदा से फरियाद की. अब डिफरेंस जो है वो भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस क्या होता था. आइए इसको पढ़ते हैं. पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 21 आयत से हम पढ़ते हैं. एलिया के बारे में लिखा है कि और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर यानी स्ट्रेच कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, अय खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो फरियाद थी ये सुनी भी जाती है. लड़के की जो जान है वो वापस भी आ जाती है और वो जिंदा होता है और उसे मां के सुपुर्द किया जाता है. जब 24 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो औरत जो है वो बयान करती है, उसका जो ईमान है, उसका जो बयान है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें हमें मिलता है. लिखा है कि तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है. यहाँ पे एक लफ्ज लिखा गया है कि एलिया जो है वो 3 बार जो है लिखा है कि वो पसारा और फिर खुदावंद से यानी कि उसने अपने आप को स्ट्रेच किया है 3 बार जो है. खैर ये आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई 3 टाइम्स, क्यों 3 दफा जो है एक आयत हमें मिलती है. ये एक तरह से कह सकते हैं कि एलिया जो कर रहा था ये आप समझें कि ये एक कहानी बरकत जो थी उसका एक नमूना हमें पता चलता है. एक ही आयत हमें पढ़ते हैं. गिनती की किताब जब हम पढ़ते हैं 6 बाब और उसकी 24 आयत से 28 आयत तक, हम 24 से 27 तक पढ़ते हैं. क्या लिखा है? खुदावंद जो है वो मूसा से कहता है कि हारून और उसके बेटों से क्या है कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना. 24 आयत गिनती 6, नंबर चैप्टर 6 24 to 28. तो वी गोना स्टार्ट 24. लिखा है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे. खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे और खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे. 27 आयत में लिखा है कि इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और क्या होगा कि मैं उनको बरकत बख्शूंगा. ब्लेसिंग जो है वो बख्शूंगा. 3 बार जो है कह रहा कि अगर तू ये करेगा तो फिर क्या होगा कि बरकत आएगी, ब्लेसिंग आएगी. प्रोबेबिलिटी ये है कि एलिया जो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि वो भी इसी एग्जाम्पल से वो 3 बार जो है उसने स्ट्रेच किया, वो इसी तरह हो सकता है. इसके अलावा एक और मुर्दा जो है वो जिंदा होता है. अलीशा जो है वो भी एक मुर्दा को जिंदा करता है. 2 किंग्स चैप्टर 4 32 to 37.
दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत से 37 आयत तक। ये तो हो गए पुराने अहदनामे के। उसके बाद पालूस रसूल जो है, ये भी अमाल में जब पढ़ते हैं तो वहां पे मिलता है कि पालूस रसूल जो है ये भी एक मुर्दा को जिंदा करता है। शायद आपको वो वर्डिंग जो है वो ना मिले वहां पे एग्जैक्ट वर्ड जो है, लेकिन आप सबको याद है कि ये तीसरी मंजिल के ऊपर सब बैठे थे, दे वर प्रेइंग। उसके बाद क्या होता है कि एक यंग लड़का था, लेकिन कि नौजवान लड़का था। सबक ये मिलता है यहाँ पे कि वो डीप जो उसे नींद आती है, तो क्या होता है कि उस जमाने में क्या होता था कि विंडोज जो हुआ करती थी उनके आगे कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ ओपन ही होती थी। और वहां पे क्या होता है कि ये लड़का जो था शायद हवा के लिए बैठा था कि मैं यहाँ बैठा हूं, और क्या होता है कि जब इसे नींद आती है तो वहां पे गिर पड़ता है। शायद रात जो थी वो जब पालूस रसूल उनको बात कर रहे थे, लंबी बात हो चुकी होगी, तो लिखा है कि ये वहां से गिरता है, और जब सारे नीचे आते हैं तो लिखा है कि उन्होंने उस लड़के को मुर्दा पाया। एक सबक भी यहाँ पे मिलता है कि शायद नौजवान जो है बाज दफा उन्हें बेदार होने की जरूरत है। खुदा जो है, जो यंग लोग हैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता है। यूथ जो है खुदा उनसे बड़ी मोहब्बत करता है। खैर बनी नो इंसान से वो बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में से आपको सबाक में हम देखते हैं कि एक नौजवान था, वो गिरता है, और फिर क्या होता है कि पालूस रसूल जो है वो नीचे आता है, उस लड़के को वो क्या करता है, संभालता है, और उसके बाद वो लड़का भी जिंदा हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो है, इसके अलावा हम देखते हैं कि 3 और जो मोर्चे हैं वो भी देखते हैं। लाजर जो है जॉन चैप्टर 11 में पढ़ते हैं, तो वहां पे लाजर को खुदा जो है वो जिंदा करते हैं। और पालूस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बड़ी अच्छी एक आयत लिखते हैं। कहते हैं कि इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15 में कहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। 2 मोड़ से हमने देखे खुदावंद यीशु मसीह के। तीसरा जो है वो यायर की बेटी है, जो इबादत खाने का सरदार था। उसकी बेटी को भी खुदावंद यीशु मसीह जिंदा करते हैं। लूका की अंजील उसका 8 बाब में ये वाकया पढ़ सकते हैं। एक चीज याद रखें कि जब आप चर्च फादर्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 मिरेकल्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन चर्च फादर जब पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि इनके अलावा भी खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया था। ये समझ लें कि जिन चीजों की हमें जरूरत थी उनको खुदा के रूह ने लिखवा दिया था। जितना हमें जरूरत है खुदा उसके लिहाज से प्रोवाइड भी करता है। याद रखिए, तारीख में अगर कोई गैर मामूली वाकया जो है अगर कोई है तो वो यह है कि मुर्दों का जी उठना है। ये एक बड़ा कहने के मामूल से हट के है। कोई शख्स जो है वो इस हकीकत को मानने से उसे बड़ा मुश्किल लगती है कि ये किस तरह हो सकता है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। याद रखिए कि हमारा जो खुदा है वो अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है। एक मजहब है स्टोइसिज्म, उसका नाम है। स्टोइसिज्म जो है उनका ये अकीदा है कि जो खुदा है ना उसके अंदर जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझते हैं कि स्टोइसिज्म के जो मानने वाले कि वो जो है वो बेहिस है, उसका कोई जो है वो अप्रोच नहीं है अपनी मखलूक से। वो समझते हैं कि वो एक सेपरेट जगह पे बैठा हुआ, बड़ी दूर बैठा हुआ है। लेकिन हमारा खुदा जो है वो ऐसा नहीं है। हमारा खुदा जो है वो पढ़ते हैं आगे, वो कंपैशन करता है, वो तरस खाता है। लिखा है 13 आयत में लिखा है कि उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए कंपैशन जो उसको रखता है, तरस खाता है। हमारी जो एक एक जो जरूरत है उससे वो वाकिफ है। याद रखिए ये वही इलाका है जहां पे अलीशा जो था उसने भी उस मुर्दे लड़के को जिंदा किया था।
वो भी गलील का इलाका था और ये भी गलील का इलाका है। वो शुनीम का इलाका था और ये हम देखते हैं कि नाइन का इलाका था। दोनों pretty much जो है वो क्लोज हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर एरियाज हो सकते हैं, एग्जैक्ट प्लेस नहीं, डिफरेंट प्लेस है, इलाके जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। इस एरिया में देखते हैं कि खास चीज जो है, लोग जो हैं खुदा के तरस के बारे में वो सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि किस तरह खुदा का जो तरस है, कंपैशन जो है वो ज़ाहिर होता है। मेरे अजीजों, यहाँ पे एक ग्रुप है, खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो शागिर्द, और लिखा है 11 आयत में कि बहुत से लोग जो थे वो उसके साथ थे। बहुत से लोग जो थे, ये हम देखते हैं कि ये लाजमी नहीं कि सारे जो हैं उनका जो एक नजरिया था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ था, वो एक जैसा नहीं था, सारे डिफरेंट थे। कुछ जो थे वो बड़ा तजस्सुस रखते थे कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को जानना है। कुछ जो थे जिसको हम कह सकते हैं कि नेबरली फेलोशिप जो है, एक ऐसे जो है वो उसके साथ एज हमसाये के तौर पे चल रहे हैं। कुछ जो वो ऐसे हैं जो उसके मॉरल प्रिंसिपल जो हैं उससे बड़े वो क्या समझते हैं कि इंटरेस्टेड थे उससे, जो उसकी अखलाकियात थी खुदावंद यीशु मसीह की, उससे बड़े मुतासर थे। उसके बाद कुछ ऐसे थे जिनको हेल्प की जरूरत थी। एक ग्रुप उनमें ऐसे भी लोग थे जो समझते थे कि हमें खुदा की जो मदद है उसकी जरूरत है। कुछ लोग ऐसे भी थे, उनके अंदर एक डिजायर थी कि हम कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये था कि उसकी जो टीचिंग थी उससे बड़े इम्प्रेस्ड थे, बड़े मुतासर थे कि बड़ी अच्छी जो है ये टीचिंग देता है। और कुछ जो थे वो समझते थे कि ये एक ग्रेट प्रॉफिट है। आज भी मेरे अजीजों हम देखते हैं कि चर्चेस में इसी तरह के लोग जो हैं वो आपको मिलते नजर आते हैं। कुछ जो हैं लोग जो हैं वो सिर्फ समझते हैं कि इनकी टीचिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी इंप्रेसिव है, इतनी अच्छी वो स्पीच करता है कि मजा आ जाता है। वो खुदा के लिए नहीं आ रहे होते, वो सिर्फ स्पीच जो उनको मुतासर किया है उस स्पीच के लिए वो जाते हैं। कुछ सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारी जो जरूरत है, शायद जो खुदाम है, शायद जो चर्च है, शायद हमारी कुछ मदद कर दे। कुछ इस नजरिए से भी आते हैं और कुछ जो वो डिजायर करते हैं कि हमने यीशु के लिए कुछ करना है। मेरे अजीजों, आज हमने देखना है कि हम कौन से ग्रुप में हैं। क्या हम जो है वो इसी तरह का ये जो ग्रुप है, तो जस्टिस वाला जो ग्रुप है, किस नजरिए से हम चर्चेस में आते हैं? क्या हम समझते हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अपना जो खादम है उसको हम खुश कर देते हैं, शायद कल को हमें कोई जरूरत पड़ जाए तो इसलिए हमें जो है वो कम्युनिटी से लिंक रखना चाहिए। इस तरह के भी लोग जो हैं वो नजर आते। इसी ग्रुप में हम देखते हैं कि इसी तरह का ये वाकया होता है। बहुत से लोग तो हैं, लेकिन तादाद जो है वो डिपेंड नहीं करती, ओबीडियंस जो है वो ज़ाहिर करती है। वफादारी जो है, जो कमिटमेंट है, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर खुदा जो कुछ चीज देखता है तो वो सिर्फ वफादारी है, वो आपकी काबिलियत पे नहीं देखता। अगर कोई देखता है चीज आपकी जिंदगी में, खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड को देखता है, उसके खून को देखता है, उसकी रास्तबाजी को देखता है। वो डिपेंड नहीं करता कि कितना ह्यूज जो है वो चर्च है, कांग्रीगेशन जो है वो बहुत बड़ी है। इस तरह की चीज नहीं है। खुदा चाहता है प्योर जो बिलीवर्स है, वो चाहता है जो खालिस दिल वाले हैं उनको देखता है खुदा, उनके साथ जो मोर्चे होते हैं। क्यों जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बेवा जो है खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए आए हैं। याद रखें कि बाज जो तफसीर करने वाले वो कहते हैं कि ये बेवा जो थी इसका एक अच्छा एक असर था, अपनी बरादरी में बड़ी मोहब्बत करती थी, लोगों के साथ इसका रवैया बड़ा अच्छा था। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और यही चीज हम देखते हैं कि ये बेवा की एक तस्वीर है कि जब हमारा रवैया दूसरों के साथ अच्छा होगा, हमारा जो दिल है दूसरों के साथ वो ठीक होगा, उसमें किसी तरह की कोई करप्शन नहीं होगी, तो मोर्चा दूर से आके आपकी जिंदगी में वाकया हो सकता है।
जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने 25 मील का सफर तय किया और इसकी जिंदगी में मोर्चा किया, उसके लड़के को जिंदा कर लिया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो लिखते हैं कि रोमियो का खत रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 है, लिखा है कि पास जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। एक आदमी के सबब से जो गुनाह आता है, और क्या होता है कि फिर मौत को जन्म दे देता है, और उसी मौत की जो बादशाह तो उसमें लोग जो है वो सारे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोमियो का एक 6 बाप उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा की मोहब्बत हम देखते हैं कहां पे नजर आती है, मौत तो आ गई है, गुनाह ने तो अपना काम जो है वो खत्म कर दिया है। खुदावंद की बख्शिश जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। एक तरफ जो हम देखते हैं कि मौत है, जैसे हम नाइन के शहर से बाहर देख रहे हैं कि वो मौत में है, लेकिन सामना किससे हो रहा है? जो हमेशा की जिंदगी देने वाला है। खुदा की जो बख्शिश है, हमेशा की जो जिंदगी है, वो किसी और में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है। पतरस जो है वो बयान करते हैं, पतरस का पहला खत और 2 बाप और उसकी 24 आयत में लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। शिफा जो है मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है। लिखा है कि उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा कि ऐ जवान, मैं तुझे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। सब पर दहशत छा गई और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। ब्रदर जो ने पढ़ा था इंग्लिश में कि जो है ना, खुदा जो उसने विजिट किया है। याद रखिए, ये जो ग्रीक का वर्ड है ना कि उन्होंने खुदा की तमजीद करके कहने लगे, ये कंटिन्यूअस है। ये नहीं कि सिर्फ उधर ही उन्होंने तमजीद की, उसके बाद क्या होता है कि वहां पे बहुत से बिलीवर्स आते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो लापरवाही भी करते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो जो मुर्दा है उठ बैठा और बोलने लगा। खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी अच्छी चीज हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दे से इस तरह बात करते हैं कि जैसे वो जिंदा है। उसे कहते हैं कि भाई उठ, तो वो क्या होता है कि वो उठ बैठता है। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है, लूका जो है, ये पहली दफा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए लफ्ज जो है वो खुदावंद जो है वो इस्तेमाल करता है। खुदा की वो तमजीद करने लगे, और उसके बाद क्या होता है, ये जो खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल आया है वर्स 13 में 13 में, लूका जो है ये पहली बार जब वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है, कहता है कि खुदावंद को तरसा है। कौन है ये खुदावंद? इसका मतलब अगर देखिए तो इसका मतलब है कि जो सारी जो पावर रखता है ये वो है, कोई और नहीं है। जो पूरी कायनात की जो पावर रखने वाला है, लूका कह रहा है कि उसको तरस आ गया। जब खुदा को तरस आता है, जब वो रहम करता है, जब वो उसको मूव करता है, बात दफा ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी जो दर्द है, हमारी जो परेशानी है, इसको कौन महसूस करता है? लेकिन मेरे अजीजों, कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बर्दाश्त करते हैं, वो देखते हैं। इस औरत के बारे में हमें मिलता है कि इसकी जो जिंदगी है, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें भी इसी तरह का रवैया जो वो करना चाहिए। लूका जब हम 6 बाप उसकी 38 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में ढालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से
तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कहता है कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मेरे अजीज, हम बार बार देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की जो मिसाल है कि वो बहुत सी ऐसी आयात में हमें वो तरस खाते हुए नजर आते हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत जगह पे वो तरस खाते हैं, लेकिन जब भी उसने खुदावंद यीशु मसीह तरस खाते हैं, वो क्या हमें सबक मिलता है। आइए हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी जो 35 आयत से स्टार्ट होता है। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। यानी कि बाज़ दफा ये नहीं है कि तरस जो है वो मुर्दे ही जिंदा करता है। बाज़ दफा ऐसी आयत है जहां पे तरस खाता है खुदा, तो उन्हें तालीम देता है, उन्हें टीच करता है। बाज़ दफा हो सकता है कि हम तालीम के दायरे में, टीचिंग के दायरे में इस तरह खस्ता हाल हो कि हमें खुदा की जो मर्सी है, उसका जो कंपैशन है, हमें वो उसकी भी जरूरत हो सकती है। लाजमी नहीं कि जो टीच करने वाले हैं, जो पैस्टर्स हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उन सबको खुदा की, उसके तरस की जरूरत है। लेकिन तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए और जो है मजदूर भेजे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि तरस जो है वो हमारी जरूरियात को पूरा करता है। तालीम के बारे में हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि जब मत्ती ही की अंजील उसका 14 बाब, वहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भीड़ पर तरस खाता है और कहता है कि बीमारों को अच्छा करता है। जब भी खुदावंद यीशु मसीह तरस खाते हैं तो क्या होता है कि हीलिंग्स आती है, टीचिंग के जो भेद हैं वो भी खुलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं एक और आयत जो है वो हम मत्ती ही की अंजील उसका 15 बाब में पढ़ते हैं। लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। मैथ्यू 15 वर्स 32 में, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वो थक कर राह में रह जाए। तरस जो है ये हमारी जो जिस्मानी जरूरत है उसको भी पूरा करता है। खुदा का जो तरस है, हमें हर तरह से जो है वो खुदा के तरस की जरूरत है। उसके बाद एक और हवाला है मत्ती ही की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं कि यीशु को तरस आया। ये हम देखते हैं कि 2 अंधों की बात हो रही है, यरू से ये निकले, और उसके बाद हम 34 आयत में पढ़ते हैं कि यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीने हो गए। मेरे अजीजों, ये एक सॉवरन पावर जो है ना यूनिवर्स की, वो क्या करती है कि वो जब वो मौजूद होती है, मोर्चे होते हैं, मुकाशफात जो है वो खुलते हैं, राज जो है वो खुलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों एक ऐसा है, ये जो लॉर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है खुद मुख्तार, जो ताकत का मालिक है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। वो खुद जो है वो पावर रखता है और उसी की पावर से हम देखते हैं कि मिरेकल जो है वो वजूद में आते हैं। ये क्यों इस तरह होता है? लूका जब बड़े अच्छे तरह से बयान करता है। लूका की अंजील उसका 5 बाब में देखते हैं, लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आगे खुदावंद यीशु मसीह रीजन बता रहे हैं 26 आयत में, जॉन चैप्टर 5 वर्स 26 लिखा है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा
کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترس کی ضرورت ہے، اس کے کمپیشن کی ضرورت ہے۔ آج یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے لوکا 7 باب میں لکھا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ مردہ ہے۔ ایک سٹوری ہے، شاید آپ سب کو اس سٹوری سے واقف ہوں گے۔ وہ سٹوری جو ہے ایک شخص تھا ہسٹری میں، اس کا نام تھا بلیک برٹ نام اس کا تھا۔ ریئل نیم اس کا جو تھا وہ چارلز ای بولز تھا۔ یہ شخص جو تھا یہ ڈاکو تھا۔ 1875 سے لے کے 1883 تک اس شخص نے کیلیفورنیا میں ویلز فارگو کی جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عموماً جو ہے ان کی ایک بگی سی ہوتی تھی، اور یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج کوچ بھی اس کو کہا جاتا تھا ویلز فارگو کی۔ یہ شخص جو تھا یہ بغیر نقصان پہنچائے کوئی ایک جو ہے اس نے گن شاٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ان کو نظر آتا تھا، ان کا خوف تھا اس شخص کا، بلیک برٹ کا، وہ بڑا خوف تھا۔ یہ صرف اس کے ڈر سے ویلز فارگو کی جو سٹیج کوچ تھی ان کو لوٹتا تھا۔ 28 اس نے جو سٹیج کوچز تھی یا وہ جو بگیز تھی ان کو اس نے لوٹا تھا۔ بات یاد آتی ہے کہ گناہ جو ہے، موت جو ہے، یہ لگتا ہے کہ فائٹ نہیں کرتی، لیکن اس کا جو ڈر ہے، اس کا جو خوف ہے، فیئر جو ہے، ہر شخص کو ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ 28 اس نے بار جو ہے ویلز فارگو کو لوٹا، لیکن صرف اپنے خوف سے۔ جو ہی وہ آ رہے ہوتے تھے اور اس شخص نے جو تھا وہ نقاب کیا ہوتا تھا، جب اسے دیکھتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو نام دیتے ہیں وہ جینٹل مین جو ہے، بینڈٹ کے نام سے، جینٹل مین بینڈٹ، ایک جو شائستہ ڈاکو جو ہے اس کا نام دے دیتے ہیں کہ ہی واز دا جینٹل مین بینڈٹ۔ ایک ایسا ڈاکو کو نقصان پہنچائے بغیر وہ لوٹ رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے، موت جو ہے، اسی طرح جو ہے وہ بنی نوع انسان کو لوٹ رہی ہے، ان کے پیس کو، ان کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو لوٹتی ہے یہ۔ لیکن آج ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ اس موت، اس گناہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ موت جو ہے وہاں پہ وہ ہارتی نظر آتی ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ موت کو بھی ہرا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ موت کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے، کہ ہمیں موت کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ یہ نہ صرف جو ہے یہ جسمانی موت ہے، بزنس کی موت ہو سکتی ہے، میرج کی موت ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ کی موت ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمیں جو ہے وہ خوش ہونے کی بات ہے کہ ہمارا مسیحا جو ہے ان سب سے ہمیں نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ فتح بخش سکتا ہے۔ اگر اس نے موت سے جو ہے اس کا سامنا کیا، موت جو وہاں سے وہ بھاگتی نظر آتی ہے۔ اس نے زندگی جو تھی وہ عطا کر دی تھی۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، کون سی سچویشن ہے۔ اگر ہم کسی ایسی حالت میں جو ناامیدی کی ہے، پریشانی کی ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے اگر موت کا سامنا کر کے اس کو زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے تو ہمارے حالات کو بھی وہ چینج کر سکتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔